So the presentation topic of today is acoustic modeling techniques, automatic speech recognition. As you know, today is a very auspicious day. That is Vivekanand Jayanti, Swami Vivekanand Jayanti, 12th January, and it is also known as National Youth Day. तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स के उज्जवल भविष्य के लिए और एनलाइटेड लाइफ के लिए, प्रकाशमान जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल, मीनिंगफुल और ब्लिसफुल बने। If you want to lead a successful life, you need potential to get success in life. I wish for potential. I will tell you some rules to get potential also later on. And if you want to lead happy and healthy life, then you require divinity. एक बार मैं कहीं पर गया तो एक बहुत चीफ गेस्ट आए हुए थे। तो मैंने उनसे, बहुत बड़े पैसे वाले आदमी थे, मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप बड़े सक्सेसफुल आदमी क्या करते हैं? तो बोलने लगे मैं शराब बेचता हूँ, शराब का मेरा वो है, बिजनेस है। तो दैट इज नॉट मीनिंगफुल लाइफ। Our life should be meaningful also. And finally, there is one more state that is known as blissful. So we have so many qualities of soul like peace, love, happiness, purity, bliss, and inner strength. The goal of life should be to evolve above qualities of the soul. We pray to Almighty, and we should try to change our nature and become new men with new hearts and new strength. We remember Swami Vivekananda ji as our ideal and proceed forward towards our aim, that is acoustic modeling in ASR. Actually, it is a very wide topic and we require so many things. We require a lot of knowledge of various dimensions, excel in this field. So today I am going to discuss, this is the outline of my discussion: pattern recognition, classification, knowledge of various disciplines, introduction to ASR, different approach to the solution, dimensions of ASR, historical development, architecture, hidden Markov model, some statistical distribution like standard normal. Then I will come to neural network solution, and also I will give you some tips to improve your nervous system for professional excellence. Yes. If we want to study pattern recognition or classification, then can anybody tell me the book? Any book? There are so many books, but standard book is written below, Pattern Recognition and Machine Learning by C.M. Bishop, and its publisher is Springer. Pattern recognition classification has two subclasses. You can use this area in image processing as well as in speech processing. So image processing can be subdivided like face recognition, fingerprint recognition, handwriting character recognition, etc. In speech processing, we have three main domains: speech recognition, speech synthesis, and speaker identification. Here what we do, patterns are recognized on the basis of some features. First, we have to extract the features and then classified in various categories. These features are classified in various categories. So how can we extract the features from the audio signals? That is the area of signal processing. तो विशाल जी ने मुझे बताया था कि आप लोगों को FFT वगैरह, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म इसमें यूज होता है, DCT। इन सब चीजों को पहले किसी प्रोफेसर ने पढ़ाया, दैट्स वेरी गुड। तो आई विल कवर द सेकंड पार्ट। फीचर्स आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, देन उसके बाद में हाउ वी क्लासिफाई, हाउ वी यूज मशीन लर्निंग टेक्निक्स, हाउ वी यूज अदर क्लासिफिकेशन टेक्निक्स। This part I am going to cover. For this purpose, we use various modeling and matching techniques. So, I don't know, किसी ने इस किताब का नाम पहले सुना है? CM बिशप का नाम, पैटर्न रिकग्निशन एंड मशीन लर्निंग।
if anyone heard the name of the book or anyone studied this book, this is a very standard book in this domain. जो इस डोमेन में पीएचडी करना चाहते हैं उनको ये पढ़नी चाहिए. ओके, डोंट नो कि कितना मैं इसको इंटरेक्टिव कर सकता हूँ. ओके, यस. तो disciplines require knowledge of what disciplines required for this. First is acoustics or sound wave characteristics. Phonetics related to language domain. This comes phonetics in language domain. Vocal tract functionality, बोलना है उसको समझना है, related to human anatomy. Digital signal processing, signal representation, measurement, analysis and transformation. Probability theory and statistic modeling. This is the main aim of today lecture or today talk. Design and analysis of algorithms. आगे भी है areas. AI and neural net, knowledge based approach for language modeling. Natural language processing. These are the models RT and UT and DCG for grammar representation. Various types of softwares, just like you should have a knowledge of Python, MATLAB. Not only Python, MATLAB, but some speech recognition tools are also required. Sphinx. This is designed by the Carnegie Mellon University. HTK and Caldi is designed by some Japanese university. So we also require some knowledge of swarm optimizations, genetic algorithms, dynamic Bayesian networks, and all that. What is the introduction of ASR? Automatic speech recognition. Means our voice, our speech, our audio signals should be converted into text or should be converted into words. This is the ASR. It transforms the audio or voice into a sequence of words. This is the simple introduction of ASR. Why it is so complicated? Because we have so much variability in speech recognition. Variability due to acoustic environment, noise, speakers, channel conditions. Speaker, you can tune model for a particular speaker, or it should be speaker independent. There should be adaptation of some speakers. These are the variabilities. Size should be the size of the vocabulary which we are going to cover. It may be 100 words, it may be 1000 words, it may be 20,000 words. So according to type of vocabulary, size would be large, very large, medium, small. Scale, automatic speech recognition. Style of speech, it can be continuous or it can be isolated, it can be planned or it can be spontaneous conversation. Another thing is paralinguistic aspects like timing. कितनी जल्दी जल्दी आप बोलते चले जा रहे हैं, है ना. वॉइस क्वालिटी आपकी कैसी है, एज फैक्टर, हेल्थ फैक्टर, है ना. अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, हंसी हो रही है बीच में, कुछ और हो रहा है, अटक अटक के बोल रहे हैं, all these things. Now we come to the different approaches to the solution. There are four main categories of approaches to automatic speech recognition. These are, first is dynamic time warping, TW. This is template based approach. What we do, we matches the templates. We train the models, templates, and then try to match the templates. Other is stochastic approach. That is known as mainly, that is performed mainly by hidden Markov model random process.
I don't know you have an idea of a stochastic process or not. I don't know you have an idea of probability or not, probability theory. I don't know you have an idea of PDF and CDF of or not. Probability density function, cumulative distribution function, all these things you should have an idea. Or random variable, random process, stochastic process, Markov process, these are required here in hidden Markov model. If we don't want to use DTW and HMM stochastic process, then we can opt another approach, AI-based approach, in which we can use a combination of GMM and ANN. What is GMM? GMM is Gaussian mixture model and ANN is artificial neural network. And currently, we have shifted on deep learning approaches like CNN. When we can shift to deep learning approach like CNN, when we have huge database. आजकल कंप्यूटिंग पावर बहुत हो गई है, डेटाबेस बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो we can use deep learning approaches like convolution neural network. Next, dimensions of ASR. I told you previously, it may be small vocabulary size, it may be medium vocabulary size, it may be large vocabulary size, speaker mode, speaker trained system, speaker adaptive system, speaker independent system, speaker situation, human to machine dialogue, human to human dialogue. That is, it may be speech translation system, a speaking environment, it may be a quiet room, or it may be a conference room जहाँ पर सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, noise room, outdoor, transmission channel, direct from speaker to machine, telephone channel, wired or and wireless. उसी हिसाब से हमें मॉडल बनाना पड़ता है जो सिचुएशन हमारे पास है. वोकैबुलरी छोटी है तब, वोकैबुलरी बड़ी है तब, स्पीकर ठीक है तब, स्पीकर इंडिपेंडेंट है देन. क्या शोर मच रहा है तब, शांति है तब, उस हिसाब से मॉडल को डिजाइन करना पड़ता है. It would be better to give you a brief overview of the historical development. It can be divided into 3 phases. पहला जो फेज शुरू हुआ इसका वो 1960 से शुरू हुआ. फर्स्ट फेज इज 1960 to 1980. इसमें क्या हुआ? यूज ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम वर्ड. We have used here isolated word vocabularies and connected word sequences. We use dynamic programming here and vector quantization techniques for compact representation of feature vectors. अगला जो फेज आया वो आया 1980s to 2000. इसमें क्या हुआ? इसमें हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन की अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई, जैसे LPCC, लीनियर प्रेडिक्शन सेपेस्ट्रल कोफिशिएंट, MFCC, मेल फ्रीक्वेंसी सेपेस्ट्रल कोफिशिएंट. इसमें हमारे पास काफी अच्छे अच्छे स्टैटिस्टिकल मॉडल आ गए, जैसे हिडन मार्कोव मॉडल. तो HMM स्टैटिस्टिक मॉडल मेथड्स फॉर मॉडलिंग स्पीच डायनामिक्स. तो इसको ट्रेन करने के लिए वी रिक्वायर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन टेक्निक्स. ओके, ये सब स्टैटिस्टिकल हैं. इसी समय पे हमारे पास न्यूरल नेटवर्क भी आया, बहुत कम यूज हुआ. फिर आगे टाइम चला 2000 से 2022 तक, 2000 to 2022. इसमें जो रियल ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आज बड़ी एडवांस स्टेज पे है, ये सारा चीजें इसमें डेवलप हुआ. आज हम गूगल पे यूज कर रहे हैं या मोबाइल्स पे यूज कर रहे हैं. इट डेवलप्ड इन दिस फेज 2000 to 2022. तो 20-20 साल के ये 3 फेज हमारे पास में आए. यूज ऑफ, इसमें क्या हुआ तीसरे फेज में? यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड्स टू इंक्रीज decision reliability, approaches to detect and correct linguistic inconsistencies
increasing recognition robustness in noise, machine learning and deep learning like CNN, LSTM. LSTM का नाम पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, long short term memory. Yes. Now we come to architecture. Its architecture has two ends. One end is signal processing end, that is known as front end. Another end is back end, that is pattern recognition or classification end. फ्रंट एंड पे क्या होता है, सबसे पहले आप जो स्पीच है उसको सेंसर लगा करके कैप्चर करेंगे, इस माइक्रोफोन से कैप्चर करेंगे, तो इट इज डिजिटल, तो इसको डिजिटल कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इसको फ्रेम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, फ्रेमिंग, विंडोइंग, ब्लॉकिंग, ब्लॉक करना पड़ेगा, छोटे छोटे फ्रेम बनाएंगे इसके हम 10 मिली सेकेंड से 20 मिली सेकेंड 30 मिली सेकेंड इतने इतने फ्रेम्स को बनाएंगे, फिर उन फ्रेम्स के हम फीचर्स निकालेंगे। इसके लिए वी यूज very complicated signal processing, digital signal processing techniques. The name of these techniques is MEL frequency special coefficient linear prediction special coefficient. तो ये हमारा फ्रंट एंड है। बैक एंड पे क्या करते हैं हम? We have to use acoustic model to match the trained and test data. इसके बाद post processing language modeling here we have to use, and then final decision making or decoding produce the output hypothesis or the sentence which was spoken. आर्किटेक्चर को हम दूसरे तरीके से देखते हैं और सिंपल तरीके से। देखिए इसमें प्री प्रोसेसिंग, पहले स्पीच सिग्नल प्री प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है, फ्रेमिंग, ब्लॉकिंग, विंडोइंग हो रहा है, नॉइज हटा रहे हैं उसमें से, दीज आर दी ऑफ प्रोसेसिंग। देन फिर फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से, फिर बैकएंड पे आकर के बैकएंड पे हम वी यूज 3 टाइप ऑफ मॉडल्स, अकॉस्टिक मॉडल, लैंग्वेज मॉडल एंड प्रोनाउंसिएशन मॉडल। क्यों यूज करते हैं हम 3 मॉडल्स? देखिए अगला, हमें वी हैव 2 टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट वर्ड लेवल मैच। वर्ड लेवल मैच में क्या होगा, वी रिक्वायर सबवर्ड मॉडल जिसको हम अकॉस्टिक मॉडल कह रहे हैं, एंड प्रोनाउंसिएशन मॉडल जिसको लैक्सिकन कह रहे हैं। जो कर रहा है, जो टेक्स्ट दे रहा है, वो आपकी डिक्शनरी में भी है नहीं है, कोई ऐसा वर्ड दे रहा है जो डिक्शनरी में नहीं आ रहा, तो सो वी यूज प्रोनाउंसिएशन मॉडल। इसके बाद में फिर सेंटेंस लेवल मैच में हमें ग्रामर चाहिए, सिमेंटिक चाहिए, ठीक है, देन रिकॉग्नाइज्ड सेंटेंस। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ कंटीन्यूअस स्पीच रिकॉग्निशन। Excuse me, sir. यस 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 Sir, एक little more description at this point. Sir, Yes. we are taking a signal, fine. यस Then a spectral analysis. That means pre-processing part, we are removing noise or passing through low pass filter or removing the silent in pre-processing, right? Are we removing silent part also here, or making the frames? Yes, we are making the frames. Then we Yes. are extracting the features. In last slide, Yes. what that X1, X2, XT, they were the features, right? Yes. Yes, sir. And Then after we sending these features, then we sending these features to the back end. okay, If all we are using MFCC yes, sir. for feature extraction, So we are, for example, we are using MFCC as a feature, right, sir? MFCC feature extraction technique. In MFCC, from one frame, we extract 39 features. Okay, sir. For every frame, we are computing MFCC or what are the rest? LPCC, LPCC, PLP. There are so many feature extraction techniques. Here important features we are taking MFCC, PLP, LPCC. all are LPCC. Yes, एक्चुअली क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज में जो हाई एनर्जी डोमेन है उसको हम कैप्चर करते हैं। Yes, sir. And then in the next slide, sir,
Yes. we are already having in sub word model we are already having features of that in form of library we are already having features of those words, right sir? Then we Yes, are yes, matching. yes. And Yes, then then yes. how they are handling this lexicon part, this part, yeah, my confusion is here, lexicon part how we'll handle. Yes, I am going to tell you. Suppose Yes, uh, there is a word I. yes sir. I may be EYE or I may be simple I. Right sir. So these things should be in lexicon. This is the dictionary. डिक्शनरी में होना चाहिए. कुछ भी अला बला आपने इसने सेंस कर दिया, वो डिक्शनरी में नहीं है. Okay sir. Actually, So what I'm saying on the feature level, how we'll understand means for both the feature, I mean both the like I or simple I for I आंख के लिए बोल रहे हैं, I अपने के लिए बोल रहे आई हैं, के लिए बोले. हाँ जी, हाँ जी. दोनों के लिए सर अलग अलग हमारे पास अलग टाइप के फीचर बन के तैयार होंगे इस पे, राइट सर? सेम फीचर आएंगे. राइट सर, तो सेम फीचर आएंगे तो वहां पे हम कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, वही क्वेश्चन है सर हाँ, मेरा. ये आगे जब आप जाएंगे ना ग्रामर लेवल, ग्रामर पे यस सर. यहाँ पकड़ा जाएगा वो. ओके सर, ओके So ओके, language ग्रामर model will work, sir. आई एम ईटिंग आइसक्रीम. लेवल. यस सर, अब ये तीसरा आई फिर आ गया आइस आइस. करेक्ट करेक्ट सर. हाँ, यस सर. तो ये यहाँ पे आएगा ग्रामर पे. ठीक है, गुड क्वेश्चन. यस. तो वैसे इस पे डिस्कशन हो गया प्री प्रोसेसिंग पे, बैकग्राउंड नॉइज फिल्टर, ए टू डी कन्वर्जन, प्री एम्फेसिस फिल्टरिंग. आगे चलते हैं नेक्स्ट. Feature extraction is also known as parametric transformation. Actually, features in parameters. Just like the goal of feature extraction is to find a set of properties of an address that have acoustic correlates in the speech signal. That is known as parameters that can somehow be computed or estimated through processing of the signal waveform. LPCC जो है वो वोकल ट्रैक्ट के हिसाब से है, और MFCC जो है वो ऑडिटरी सिस्टम, जो सुनने की हमारी वो है कान, उसके हिसाब से MFCC डिजाइन किए हुए कि कान कैसे सुनता है, गला कैसे बोलता है, उसके हिसाब से LPCC डिजाइन किए हुए फीचर्स. This is the back end. Back end is the main issue of today talk. In front end processing, the speech input is passed through signal processing transformations Sir, and turned one into a second. series of vectors. Excuse me, sir. Yes. How we counted these features as a 39? MFCC, Yes. PLP and LPCC, right sir? कौन कितने कितने होंगे? Actually, जो फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है ना MFCC, Yes sir. हाँ, वो डिजाइन किया है उन्होंने उस तरीके से. वो क्या करते हैं कि 13 फीचर्स लेते हैं, MFCC फिर का. 13 के सेपेस्ट्रल एंड डेल्टा डबल डेल्टा. First 13 plus 13 difference and plus second difference. Delta and double delta. yes. तो ये सब लेते हैं उसमें. अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ. Yes sir. सपोज कर लीजिए हमारे पास में 100 फीचर्स आ गए, Right sir. और हम चाहते हैं कि भाई 100 फीचर्स अगर कैंड को देंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके हमको 40 बनाने हैं. Yes sir. तो उसमें हमें डायमेंशनलिटी रिडक्शन करना पड़ेगा सर, डायमेंशन कम करना पड़ेगा. Yes. तो डायमेंशनल रिडक्शन कैसे हो सकता है? जो मतलब का फीचर है, काम का चाहिए वो रहेगा, बाकी हट जाएगा सर. रिडंडेंट जो होगा हट कोई इसके लिए हम अपनी वो तो लगाएंगे नहीं, दिमाग तो लगाएंगे नहीं वहां पे. जाएगा. ये काम का नहीं है, कोई मैथमेटिकल वो चाहिए का मॉडल है, या सिग्नल प्रोसेसिंग मॉडल चाहिए, कोई है इस तरह का आपकी नॉलेज में मॉडल, या कोई टेक्निक? Yes sir, है टेक. कौन सी टेक्निक है? LDS. मैं भूल रहा हूँ एक टेक. LDS. हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ. विशाल जी बता रहे हैं कौन सी टेक्निक है? यस, चैट पे लिखिए, किसी को पता हो तो. टॉपिक है सबके लिए लिखना. डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक होता है सर, नाम मेरे हाँ. ध्यान है, भूल रहा हूँ सर. भूल गए ना? हाँ. That is principal component analysis PCA, yes sir, PCA, right sir, PCA. and Principal. linear discriminant analysis, LD. Yes. PCA जो होती है वो आइगन वैल्यू बेस्ड होती है. ठीक है. Yes sir. PCA वगैरह तो मैं यूज किया हूँ. yes sir, वही मैं ध्यान नहीं आ रहा. PCA हमने यूज किया सर. कंपोनेंट एनालिसिस. ओके.
तो how are these feature vectors turned into probabilities? This is computing acoustic probabilities. Among the various acoustic models, HMM को भी शुरू में आया तो इससे बहुत सारे लोग हाफ माइंडेड हो गए थे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है. HMM is so far the most widely used and most effective approach. HMM केवल ASR में यूज नहीं हुआ, ये फाइनेंशियल उसमें बहुत यूज हुआ, फाइनेंस के एरिया में बहुत यूज हुआ ये फाइनेंशियल प्रेडिक्शन के लिए. HMM is a statistical model for an ordered sequence of symbols acting as a stochastic finite state machine. You have heard the name of finite state machine in automata. This is a stochastic finite state machine which is assumed to be built up from a finite set of possible states, each of those states being associated with a specific probability distribution or probability density function. मुझे बताइए, आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी लिए बाद में देखेंगे. Each state of machine represents a phonetic event and a symbol is generated each time a transition is made from one state to the next. अब में कौन कौन सी फंडामेंटल एकॉस्टिक यूनिट यूज होती हैं? फोन, फोनिम, एलोफोन, डाइफोन, ट्राइफोन. These are the fundamental acoustic units. Speech classes by articulation. गले से जो बोला जाता है उसमें क्या क्या डिफरेंस आता है, उसके हिसाब से क्या क्या acoustic unit है. वोवल, वॉइस्ड फ्रिकेटिव. वोवल क्या होता है? हाई एनर्जी होता है, पीरियोडिक होता है, स्टेडी स्टेट अटरेंस. वॉइस्ड फ्रिकेटिव, अनवॉइस्ड फ्रिकेटिव, स्टॉप्स, नजल्स. जैसे आप ओम जब बोलेंगे तो माँ जब बोलेंगे दैट इज ए नजल, इस नाक से आवाज आएगी. माँ जब बोलते हैं तो नजल. इस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. अब आते हैं हम acoustic मॉडल पे. Conversion of acoustic features into acoustic units or speech or text unit. For given W, acoustic model is synthesized by concatenating phone HMM models to make words as defined in pronunciation dictionary. इसमें क्या होगा? सबसे पहले फीचर मेजरमेंट और फीचर एक्सट्रैक्शन, फिर मॉडल सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल, फिर टेस्टिंग ऑफ द मॉडल, अननोन टेस्ट पैटर्न कंपैरिजन, फिर डिसीजन लॉजिक. अब यहां पर आइए, देखिए ये आपको थोड़ा परेशान करेगा. दिस इज द स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन. हमारे पास में क्या आया? फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड से हमारे पास में आए फीचर्स. ठीक है, फीचर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्चुअली जब स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, राइट? उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन. फीचर वेक्टर्स हमारे पास जो आ रहे हैं उनको हम कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन. X is the sequence of observation, acoustic feature vectors, and W denotes a word. The most likely word sequence is given by W cap means W estimated. कौन सा वर्ड एस्टिमेट होकर के HMM ने प्रोड्यूस किया? कैसे निकलेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन X. फीचर वेक्टर आपको दिए हुए हैं, W एस्टिमेट करना है. ये आप इस पे अप्लाई द बेस थ्योरम. हियर बेस थ्योरम आपको मन में नहीं मालूम है? दिस इज द बेस थ्योरम. सिंपल फॉर्म में क्या है ये? P A गिवन B इज इक्वल टू P B गिवन A P A P B बाय डिवाइडेड बाय P B. इसको कहते हैं हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. एंड जो इसके राइट साइड पे है इसको बोलते हैं हम P B गिवन A. इट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी. likelihood, it is likelihood. PA is prior probability, right? तो इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं. तो बाय बेस थ्योरम इट इज
W by given X is calculated as PX given W. में हर वर्ड का HMM दिया हुआ है, उल्टा किया अब इसको, ठीक है। PX given W is calculated by acoustic model probability और PW लैंग्वेज मॉडल से ये कैलकुलेट होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, हर एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अगेंस्ट दी ऑब्जर्वेशन, गिवन दी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो दिया है उससे हम हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये वर्ड की प्रोबेबिलिटी इस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट कितनी आ रही है। अगर हमारे पे 10,000 वर्ड्स हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मॉडल कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी जिस वर्ड की, वुड बी दी फाइनल आउटपुट कि ये वर्ड इस ऑब्जर्वेशन से आएगा। इसकी आप देखिए, ये HMM की जो शेल है, इसकी जो शेप है वो इस तरह की है। दिस इज दी हिडन मार्कोव मॉडल फॉर ए वर्ड राम। तो आर फर्स्ट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड र, सेकंड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड अ, थर्ड स्टेज इज रिप्रेजेंटिंग राम। हर स्टेट के नीचे आप देख रहे हैं these are the ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस, मतलब फिर वेक्टर है ये, इस स्टेट को मिल रहे हैं। What is the probability that this observation will produce राम? इस तरह से जितने भी आपके वो डिक्शनरी में वर्ड्स हैं सबके लिए हम HMM भारत, अगला HMM डिजाइन करेंगे। भारत अगर वर्ड है, अगर राधा वर्ड है तो उसके लिए एक तीसरा HMM डिजाइन करेंगे। जितनी भी वोकेबुलरी है उसके लिए, सबके लिए हम हिडन मार्कोव मॉडल डिजाइन करेंगे। नीचे इसमें आ रहा है ऑब्जर्वेशन और ऊपर क्या आ रहा है, ये इज गॉसियन। ये देख रहे हैं आप जो ग्राफ सा बना हुआ है, दिस इज गॉसियन। देखिए गॉसियन है, ये गॉसियन है। तो मेरे ख्याल में आपका दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दिस इज द गॉसियन, ठीक है। गॉसियन जानते हैं आप क्या होता है, नॉर्मल गॉसियन क्या होता है, कौन जानता है इसके बारे में? Yes, sir. This topic is already covered, sir. Gaussian making models. Yesterday, day before yesterday, these topics were covered, sir. अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। Only Gaussians was covered, not the hidden Markov model. Gaussian and ओनली Gaussian गॉसियन। mixture model. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं Multivariate गॉसियन, and univariate both discussed. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रिव्यू देते हुए निकल जाऊंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट, HMM is represented by 5 parts. First is set of hidden states, it may be denoted by Q. Next is observation symbol, these are feature vectors. Third is initial state distribution, that is denoted by pi I. कहाँ से ये स्टार्ट होगा, किस स्टेट से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, that is Q1 state if y is equal to I, राइट। स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी, t+1 टाइम इज इक्वल टू z। q+1 t+1 टाइम पर अगर स्टेट j में एंटर करती है, कहां से, t टाइम पर वो स्टेट i में है, i से j में जाने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज aij, रिप्रेजेंटेड बाय aij। ऑब्जर्वेशन सिंबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किस स्टेट पर कौन सा सिंबल जनरेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दिस इज Bik, represented by Bik, right? Like this we frame the architecture of HMM. This is the simple Markov model, right? This is the example to move to understand the complicated hidden Markov model. This is the simple Markov model, right?
Here there are two states 1 and 5 which have initial state probability 0.5 0.5 देख रहे हैं 0.5 ये फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0.5 और ये फिफ्थ स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0.5 तो इनिशियल स्टेट में भी पॉइंट फर्स्ट स्टेट एंड फिफ्थ स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय this is represented by state transition matrix probability to transit from state I to state J transition matrix is like this. Up now you have to calculate what is the probability of observing this sequence of symbol for fast FOUR. तो कहां से स्टार्ट करें? आप अगर 5 से स्टार्ट करेंगे तो चल जाएगा काम. यहां से 5 से आप F आएगा 1 पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे O आएगा, फिर 7 पे जाएंगे, फिर R, फिर इसके बाद में फिर 5 जाइए, डैश में गैप है, फिर F 1 पे, फिर 2 A आ गया, फिर 2 पे, फिर S 3 पे, फिर T 4 पे. So what is the probability of observing the sequence of symbol for fast? इसको कैलकुलेट करिए. पेन चलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा है ना. तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट दिस, राइट. ये ऑब्जर्वेशन है. दूसरा फिर ये स्टेट का दिया है, 5 से शुरू किया, फिर 1 पे गए, फिर 6 पे गए, स्टेट, फिर उस पे स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते चले गए. ठीक है, तो ये लास्ट में कुछ इसका आंसर आ जाएगा. ये हो गया मार्कोव मॉडल. अब फ्रॉम मार्कोव मॉडल have to switch to hidden Markov model. In Markov model, each state is uniquely associated with an observable event. And in hidden Markov model, outcomes or observations of the model are a probabilistic function of each state. इसमें खाली उससे नहीं काम चलता. इसमें तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हो गई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांजिशन हुआ, बस उसे काउंट किया, काम चल गया. बट यहाँ ऐसा नहीं है हिडन मार्कोव मॉडल में. इसमें हर एक स्टेट का अपना एक प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन होता है. दूसरी चीज, द स्टेट सीक्वेंस इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, इट कैन ओनली बी अप्रोक्सीमेटेड फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम. आगे चलते जा रहे हैं, कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे उसका आइडिया लगता है स्टेट का. थर्ड जो में मेन जो प्रॉब्लम है, वी यूज डबली एम्बेडेड स्टोकेस्टिक प्रोसेस. There are three basic problems in hidden Markov model. First problem is known as the evaluation problem. Given a model and a sequence of observations, what is the probability that the model generates the observations? Okay. What is the probability that the model generates the observation? Second thing, decoding problem. Given a model and a sequence of observations, what is the most likely hidden state sequence in the model that produces the observations? Third is learning of HMM. Given a model and a set of observations, how can we adjust the model parameters to maximize the joint probability? अगर आपने HMM को समझना है तो आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए. पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है. दूसरी चीज मार्कोव मॉडल, तीसरी चीज विटरबाई एल्गोरिथम, और चौथी चीज एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन और MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. ये सब पता होना चाहिए आपको. अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए. आपने इससे पहले बहुत सारे स्पीकर्स को पढ़ा है. माय क्वेश्चन इज, फीचर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग आपको कोई प्रोफेसर मेरे से पहले आए होंगे, उन्होंने बताया होगा. फीचर्स जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दीज शुड बी कोरिलेटेड और अनकोरिलेटेड. क्या होना चाहिए? फीचर कोरिलेटेड होने चाहिए या अनकोरिलेटेड होने चाहिए. जैसे एक स्टूडेंट है, उसके दो फीचर है, एक हाइट और एक वेट.
हाइट एंड वेट आर कोरिलेटेड और अनकोरिलेटेड। तो इसी तरह से जो हम फीचर्स इसके कैलकुलेट कर रहे हैं 39 फीचर्स, वो कोरिलेटेड होने चाहिए या अनकोरिलेटेड होने चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका कोई आंसर है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड होनी चाहिए सर। कोरिलेटेड होने चाहिए। आप कोई रीजन देंगे इसके पीछे क्यों कोरिलेटेड होने चाहिए? सर जब हम ये हाँ बताइए। According to me, it should be uncorrelated because whenever we try to deal with any machine anything, then in uncorrelated data, it means that there is more information available. चलिए अच्छा ये बताइए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट कोरिलेशन? इसका पैमाना है कि कैसे कोरिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं सर। यस, वेरी गुड, गुड आंसर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? Or when we Answer. divide covariance by the product of two variables, the division. हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी कोई लिमिट होती है? कहाँ से कहाँ तक रह जाता है ये? सर 0 to 1। सर Yes. -1 to +1। विशाल जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, -1 to +1 बिल्कुल राइट ठीक सर, है। -1 to 1। यस, -1 कब होता है और +1 कब होता है? और 0 कब The होता है? variables move in the same direction, then it's one. सेम प्लस और जस्ट ऑपोजिट -1 एंड completely uncorrelated 0। यस, गुड आंसर। इसे देसी भाषा में बताऊं आपको, तो अगर आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है तो +1, सर आप हाँ, उससे बहुत अच्छे से कोरिलेट, और बहुत अच्छी दुश्मनी है किसी से -1। राइट सर, आपको उल्टे मतलब कोरिलेटेड तब भी है अगर आपकी दुश्मनी है उससे, तब भी कोरिलेटेड है, न्यूट्रल नहीं है, ना? बट नेगेटिव। हाँ ठीक है। और अगर किसी न्यूट्रल है आपके आसपास घूम रहा है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल है बिल्कुल, तो अनकोरिलेटेड 0 की तरफ जाएगा, वो टेंडिंग टुवर्ड्स 0, राइट? नाउ आई वांट टू टेल यू फीचर शुड बी वीक कोरिलेटेड और अनकोरिलेटेड। बाय, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ। चलिए इवैल्यूएशन प्रॉब्लम को भी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसे, क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। डू यू नो the difference between single variate and bivariate and multivariate? Yes, sir, this topic This was is the covered, sir. univariate Gaussian, Univariate, this is the multivariate, bivariate and Gaussian, mixture of and this is univariate the was covered, multivariate sir. Gaussian. Huh? Yes, Univariate, multivariate, and the mixture of univariate is covered, sir. Already covered. okay, good, 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 no problem. तो मल्टीवेरिएट का पीडीएफ क्या होता है? ये देखिए, ये बताया गया आपको मल्टीवेरिएट का पीडीएफ? Yes, sir. बता दिया, ठीक है, यस सर। ओके। इसमें जो सिग्मा है डिनोट वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। sigma 11, sigma 12 up to sigma 1n, sigma n1, sigma n2, sigma nn। एक स्टेट पे कितने आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ रही है? Can you imagine? We have 39 MFCC features. So what will be the size of variance covariance matrix? It would be 39 into 39. जितने फीचर बढ़ाते चले जाएंगे उतना इसका साइज बढ़ता चला जाएगा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का।
अच्छा मुझे एक बात बताइए कि सिग्मा 1 2 0 हो सकता है, सिग्मा 1n 0 हो सकता है, सिग्मा n1 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। कैसे? Yes, Dr. Rekha. Yes. How is it possible? It is a covariance between the two random variables or between the two features 1 and 2. Yes. When it can be 0? सर जिस पर डेटा पॉइंट पे मीन वैल्यू उसका एग्जैक्टली मैच कर जाएगा वहाँ पे 0 हो जाएगा सर। I am giving you some mathematical answer, When right? mean is 0 and variance is 1. If these are uncorrelated, if यस सर। two features are uncorrelated, then यस its variance would be 0. Its covariance would be 0. Right? So we can use only diagonal elements. We require only n. Otherwise, we require n into n. We require only 39. Otherwise, we require 39 into 39. अगर इसको हम अनकोरिलेटेड और वीक कोरिलेटेड कर दें, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दें, तो then we can use only diagonal elements. बताइए, is it possible or not? Are you following the point or not? यस सर। Okay. चलते हैं. Giving you the flavor of a little flavor of correlation coefficient. This is the mixture of Gaussian. ये हो गया cover. ये हो गया cover mixture of Gaussian. Correlation and covariance. Correlation of two random variables specifies whether one random variable depends in any way upon another random variable. It is also used to find the linear relationship between the two variables. If two random variables x and y have possible values small x and small y, then the expected value of their product is known as the correlation. This is the correlation. Expected value E of x y is equal to minus infinity to infinity minus infinity to infinity x y f x comma y dx dy or xy bar. This is the correlation and this is the covariance. If both of these random variables have zero means, then it is frequently more convenient to find the correlation with the mean values subtracted out. This is covariance, right? And this is correlation coefficient. If it is desired to express the degree to which two random variables are correlated with regard to the magnitude of either one, then the correlation coefficient or normalized covariance is appropriate quantity. The correlation coefficient, which is denoted by rho, is defined by this. ये होता है correlation coefficient, variance of x comma y divided by sigma x sigma y. Next, value of correlation coefficient varies from -1 to +1. Now I have a tutorial problem for you. Consider two random variables for the joint PDF. X comma y is equal to x plus y. Then x varies between 0 and 1, y varies between 0 and 1. For the value of correlation coefficient. कोई बताएगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
How can we calculate this problem? I think first we calculate probability mass function PMS, G of X and H of Y, and then we put Actually, what is the difference between probability mass function and probability density function? You have used a word probability mass function, and here joint PDF is given. तो PDF एंड PMF में क्या डिफरेंस है, पहले मुझे ये बताइए. किसको मालूम है ये चीज? Sir, PMF is used for the discrete probability, and density function is used for the continuous probability distribution. गुड आंसर. PMF जो यूज होता है वो डिस्क्रीट के लिए यूज होता है, और जो PDF यूज होता है वो कंटिन्यूस के लिए यूज होता है. अच्छा, PDF में अगर हम कहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर, जैसे जब PMF यूज करते हैं तो उसमें डिस्क्रीट पॉइंट्स पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होती हैं. PDF में अगर हम कहें कि सपोज देयर इज अ पॉइंट ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट ए, किसी अगर पॉइंट पे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट वुड ऑलवेज बी 0. किसी इसमें हमेशा रेंज में प्रोबेबिलिटी निकलेगी. In case of continuous distribution, we would calculate the probability from A to B in a range, not at a particular point. At a particular point, probability will always be 0 in case of continuous. So this is Yes, sir. discrete or this is continuous nature? क्या लग रहा है आपको इसे देख के? Continuous, sir. Continuous, right. Good. तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना पड़ेगा मार्जिनल डेंसिटी. You heard the name of marginal density? Yes, sir. How can we calculate this? We try to, for calculating G of X, we try to calculate it with respect to Y, and for H of Y, we try to calculate it with respect to X. Good answer, good answer. Now you can see the answer, the marginal density. First, what we are doing? First, we are calculating the marginal density. Marginal density of X is X plus 1 by 2, and marginal density of Y is Y plus 1 by 2. Right? Then we are calculating the X bar and Y bar. Right? Like this. Okay? Next. We are calculating the variance of X and Y. Like this. And finally, we are calculating the expected value of xy. We are putting the values. Variance of x comma y is equal to exy minus ex ey divided by sigma x sigma y. तो सब तो कैलकुलेट कर लिया हमने. एक्स वाई बार आ गया हमारे पास, एक्स बार वाई बार अलग अलग आ गया, राइट. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आ गया. ठीक है. Like this we can calculate the answer. बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए. No, sir. डाउट है, ठीक है. आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर गुड नेम? Sanand Tripathi. ओके. आप किस डोमेन से हैं? जैसे कंप्यूटर साइंस से ही हैं? Yes, sir. I am from Computer Science Engineering. Okay, B.Tech. Central University of Haryana, sir. Okay. Central University of Haryana.
Okay. Faculty there. You have good idea of statistical techniques. Sir, I am a student, sir. Eh? Student, sir. Tech, BTech second year? Yes, sir. Oh. Good. बढ़िया, बहुत अच्छा. एक्चुअली मशीन लर्निंग, स्पीच प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, इसमें स्टैटिस्टिकल का बहुत यूज है और इसका तो बहुत यूज है, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन का. चलिए फिर और कोई त्रिपाठी जी के अलावा और कोई? तो नेक्स्ट, अब ये बताइए, वी हैव अनदर प्रॉब्लम. Analog signal received at a detector measured in microvolts may be modeled as a Gaussian random variable capital N 200, 256 at a fixed point in time. What is the probability that this signal will exceed 240 microvolts? अब इस प्रॉब्लम को कौन करेगा? करके दिखाइए. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? 9th 10th 11th 12th में आपने लॉग टेबल यूज की होगी कभी? ऐसे इसमें भी एक टेबल चाहिए. Normal distribution table चाहिए, sir. Yes, I am showing you the table. This is the table. This table is for distribution function. What is the difference between density function and distribution function? Question is this. And this is for standard normal. One more thing you have noted or not? What is standard normal? Mean is 0, sir. Yes. This is partial answer. Mean is 0. Standard deviation 1. And variance is 1. Standard deviation 1. mean 0. Sigma Yes, should be 1. Yes. Mean should be 0. Sigma should be 1. Yes. Yes. Mean is 0, variance 1. Yes. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. First, we can calculate probability for x greater than 240. Yes. Then, P then we can- is probability of x is greater than 240 is equal to 1 minus probability of x less than or equal to 240. अभी क्या बन गया? ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. CDF बन गया अभी. Yes, sir. अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए. हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड? x माइनस म्यू अपॉन Over सिग्मा. sigma. यस. कन्वर्ट करने के बाद में ये आ गया 2.5. अब
now we can look the value of fz 2.5 in the table. The ये chart, table yes. देखिए, कितनी वैल्यू है बताइए टेबल में देख करके 0.5987. नहीं गलत हो गया 0.25. 0.9978. Oh, value 4, sir. Just repeat. Value 4. no 2.5 अच्छा 2.5. की वैल्यू हाँ 0.9938, I think. Yes. 379 was yes there. yes now it's correct 2.5 का 0 पर देखेंगे ठीक है 9938. यस 0.9938 इसको देखने का तरीका मालूम है अगर 1.55 है तो 1.5 का 5 पे देखेंगे 1.67 है तो 1.6 का 7 पे देखेंगे इस तरह से ही चलता है ठीक है इस टेबल को इस तरह देखते हैं पॉइंट जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज फॉर 0.00 सेकंड वैल्यू 0.01 0.5040 ऊपर जो है ना 0.02 0.03 0.02 इस तरह से फिर 0.10 0.11 0.12 इस तरह से देखते हैं इसको इट इज 2.5 का 0 पर 0.50 0.9938 ठीक है तो ये सॉरी 0.9938 इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.0062 दिस इज द आंसर in the same manner we can calculate the second part of the problem. What is the probability that the signal is larger than that then larger than 240 microvolts given that it is larger than 210 microvolts. We divide it by the same problem. We will divide it by x greater than equal to 210. Yes, 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 yes. है ना? I hope you will solve the problem. 0.023. Okay. किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए हमारा स्टैटिस्टिकल जो पोर्शन है वो लगभग कवर हो गया है तो वी आर कमिंग टू दी अदर पार्ट नॉन स्टैटिस्टिकल इट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे आ रहे हैं एक्चुअली अब से 7 साल पहले न्यूरल नेटवर्क को डीप लर्निंग को कोई यूज नहीं करता था 7-8 साल पहले अब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है पैराडाइम शिफ्टिंग नेटिव जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए रिसोर्स बहुत अच्छे नहीं है पूरे रिसोर्सेज हैं हिंदी का कोई बहुत अच्छा डाटाबेस नहीं मिल पाएगा बंगाली का बहुत अच्छा डाटाबेस नहीं मिल पाएगा तो दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिकल यूज करने पड़ते हैं अगर ह्यूज डाटाबेस है बड़े डाटाबेस हैं तो उसके लिए वी कैन शिफ्ट टू डीप लर्निंग टेक्निक्स न्यूरल नेटवर्क सॉल्यूशन फॉर एएसआर मुझे ये बताइए कि ये न्यूरल नेटवर्क आया कहाँ से थोड़ी देर के लिए आपके सब्जेक्ट से हट के दूसरी चीज पे आते हैं 5 मिनट्स के लिए एक तरह से ब्रेक मान लीजिए ये 5 मिनट का इफ वी वांट टू इम्प्रूव प्रोफेशनल एक्सेलेंस बाय स्ट्रेंथनिंग concentration confidence cognition comprehension competition
प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए हमें ये 5 चीजें बढ़ानी पड़ेंगी, स्ट्रेंथन करनी पड़ेंगी। इस कौन सा बायोलॉजिकल पार्ट इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ब्रेन में कौन सी यूनिट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, राइट। नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, न्यूरॉन्स कह सकते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स इसके लिए, यस, सर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है ना, न्यूरॉन्स से मिलके नर्वस सिस्टम हो जाता है, राइट सर, राइट। ठीक है। कलेक्टिव न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हाउ कैन वी इम्प्रूव? न्यूरॉन्स, अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। उसका 5% भी एक्टिव होता है मुश्किल से। हाउ कैन वी, आवर न्यूरॉन्स कैन बी मोर एक्टिव? दिस इज द क्वेश्चंस। आपको मालूम है व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रीमेच्योर डेथ? बिगेस्ट कॉज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, सबसे बड़ा रीजन क्या है प्रीमेच्योर डेथ का? अगर आप नेट पे पाएंगे तो आपको मिलेगा कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टर कार्डियक अरेस्ट का रीजन बताता है ब्लॉकेज मेनली, लेकिन आजकल यंग एज में बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उनको तो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज नहीं होता। अटेंडेंस लिंक आया हुआ है भाई, ये कौन मांग रहा है अटेंडेंस? Sir, I am sharing again. देखिए, ठीक है। सेकंड जो इसमें जो बड़ा रीजन है, आपकी हार्ट की मसल्स अगर वीक हैं तो कार्डियक अरेस्ट इजीली हो जाएगा। अगर हार्ट की मसल्स स्ट्रांग है, मसल्स कैसे स्ट्रांग होती हैं हार्ट की? अगर आपका नर्वस सिस्टम बढ़िया है आपको, तो हमें कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। अब नर्वस सिस्टम को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं? क्वेश्चन इज दिस। इसी न्यूरॉन को हमने मैथमेटिकल जब मॉडल किया तो क्या बन गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जो ब्रेन में हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को हमने समझा और इसको मैथमेटिकल मॉडल कर लिया, देन इट बिकेम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम बायोलॉजिकल न्यूरॉन। बायोलॉजिकल न्यूरॉन से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बन गया, ठीक है। मैं कहता हूं कि न्यूरॉन्स को क्या हम एक्टिव कर सकते हैं? ज्यादा न्यूरॉन्स को एक्टिव कर सकते हैं जिससे प्रोफेशनल एक्सेलेंस हो पाए। यस सर, मंदबुद्धि बच्चा है उसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं यस सर, ऐसे बाय लर्निंग एंड ट्रेनिंग। बाय लर्निंग और ट्रेनिंग, यस। बट डू यू नो मेडिकल साइंस से नो फॉर दिस। मेडिकल साइंस कहती है नॉट पॉसिबल। मंदबुद्धि को बुद्धिमान नहीं बना सकते, ये मेडिकल साइंस कहती है। आवर इंडियन कल्चर सेज यस, इट इज पॉसिबल टू सम एक्सटेंट। आपको मालूम है हिंदुस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं 10 में से 7 इंटेलिजेंट होते हैं, और अमेरिका में जो पैदा होते हैं वो 10 में से 3 इंटेलिजेंट होते हैं। उल्टा है बिल्कुल। 10 में से 7 इंटेलिजेंट होते हैं, 3 बुद्धू होते हैं, वहां पे 7 बुद्धू होते हैं, 3 इंटेलिजेंट होते हैं अमेरिका में। हमारा जो लाइफ स्टाइल है या फूड स्टाइल है, जो खाने पीने का तरीका है, वो कुछ इस तरह का है कि हमारे न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। मैंने काफी लोगों पे इस तरह के प्रयोग किए और उनके न्यूरॉन्स और उनकी जो ये मेंटल पावर है या नर्वस सिस्टम है उनका स्ट्रांग हुआ। इसमें इन एक्सपेरिमेंट्स में मेरा अपना एक बेटा भी है।
Last year he got 32 rank in JEE Advanced. उसको हमने 3 साल उस पर प्रयोग किए हमने उसके नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए. I got very good results in his case. और भी बहुत सारे लोगों पे किए, ऐसा नहीं कि उस पे किए. तो इसमें जो फर्स्ट फार्मूला है आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है गॉड मे फॉरगिव योर सिंस योर नर्वस सिस्टम वॉन्ट. हम अगर गलत काम करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान गलती हो गई तो हमें माफ कर देना, तो भगवान माफ कर देगा, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम हमें माफ नहीं करेगा. मतलब नर्वस सिस्टम पे उसका बैड इफेक्ट आएगा ही आएगा अगर हम गलत काम करते हैं. तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द राइटियस पाथ. ठीक है, आज विवेकानंद जयंती भी है तो इस पे हम लोग ये प्लेज ले सकते हैं कि वी विल ट्राई टू फॉलो दी राइटियस पाथ, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन. एक स्लाइड में आपको और दिखा रहा हूँ नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए. उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की तरफ. देखिए, चेक इम्प्रूव योर नर्वस सिस्टम फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस. चेक द नेगेटिव थॉट्स. सबसे पहला आपको क्या करना है, हेट्रेड, जेलसी, फियर एंड एंजाइटी से बचना है, बैड डीड्स. दूसरी चीज, ट्राई टू लिमिट हरी वरी एंड करी पार्ट ऑफ योर लाइफ. तीसरी चीज, इंक्रीज द इनटेक ऑफ एल्कलाइन फूड्स. आपको मालूम है चाइना में इस समय हाई तौबा मची हुई है. कोरोना का हाई तौबा मचा हुआ है, लेकिन हम लोग के इंडिया में हम लोग एल्कलाइन फूड्स लेते हैं, वेजिटेरियन फूड्स लेते हैं जो एल्कलाइन होते हैं. ठीक है, जैसे ही इन्फेक्शन बढ़ने लगे आप एल्कलाइन फूड्स पे आ जाइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी. एलन चंडीगढ़ से मेरे बेटे ने कोचिंग की थी. उन्होंने एग्जाम से पहले मेरे बेटे के लिए एसिडिक फूड बंद कर दिए थे सारे, 1 महीना पहले एग्जाम से. उसको कह दिया था आपने कोई भी तला हुआ नहीं खाना, कोई भी एसिडिक फूड नहीं लेना, कोचिंग वालों ने. नेक्स्ट पॉइंट इज इनहल अप टू नेवल विद फीलिंग ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ. हर समय जल्दीबाजी में रहते हैं, भागा दौड़ी में रहते हैं. कभी कभी नाभि तक सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप को एनर्जाइज फील करिए. गहरी सांस लेने पर स्ट्रेंथ और एनर्जी आ रही है. मेडिटेट ऑन आज्ञा चक्र विद गायत्री मंत्र फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मास्टर ग्लैंड. आपको पता है बॉडी में मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी. जब ये कम काम करती है तो थायराइड बढ़ जाता है और बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिगड़ जाती हैं क्योंकि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी होती है. अगर आप आज्ञा चक्र पर मेडिटेशन करते हैं, कड़ाई पर, या गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो ये कैम्ब्रिज की एक प्रोफेसर ने रिसर्च करके एक रिसर्च पेपर डाला हुआ है. अपने यहाँ एम्स में वो लगी हुई हैं और उन्होंने आईआईटी हैदराबाद के साथ कोलैबोरेशन करके गायत्री मंत्र पे, एक्सक्लूसिवली फॉर गायत्री मंत्र पे उन्होंने रिसर्च की है. Why Aryans are more powerful, why Aryans are more talented, like this उनके टॉपिक रहे हैं रिसर्च के. Next is use natural purifier such as Valmik, कुटकी, चिरोता, गिलोय etc. नेचुरल प्योरीफायर आप यूज करिए. हम क्या करते हैं, मेडिसिन ढूंढते हैं, ताकत की दवाइयां ढूंढते हैं. जितना आपका लीवर स्ट्रांग होगा उतनी आपकी मेंटल पावर बढ़ती चली जाएगी. स्ट्रेंथन योर लीवर. लीवर को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको प्योरीफाई करना जरूरी होता है. वाल्मीक आयुर्वेदिक हर्ब है, कुटकी, चिरायता, गिलोय, ये सब आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं. इनसे लीवर प्योरीफाई हो जाएगा आपका. यूज आयुर्वेदिक हर्ब्स लाइक ब्राह्मी. आपको मालूम है ब्राह्मी जो है वो ज्यादातर
एक्सपोर्ट हो जाती है। जो कंपनी है कोका कोला, वो अमेरिका में गट्टू कोला बेचती है। कोका कोला नहीं बेचती, कोका कोला हिंदुस्तान में बेचती है, वहां बेचती है गट्टू कोला। गट्टू कोला इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ ब्राह्मी। वहाँ पे ब्राह्मी पिलाती है लोगों को, हमें पॉइजन पिलाती है यहाँ पे हिंदुस्तान में कोका कोला, समझे। तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंध, मालकंगनी, वचा, गोखरू, इसको यूज करने से हमारे यहाँ वैदिक कॉन्सेप्ट में, वैदिक जब कल्चर थी तो कहते थे लोग श्रुतिधर होते हैं, जो गुरु ने बोल दिया वो शिष्य को याद हो गया। क्यों श्रुतिधर कैसे होते थे? सबको मालकंगनी का वो पिलाया जाता था, जूस या ऑयल मालकंगनी का। उससे बहुत मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी रिटेनिंग पावर बहुत तेज हो जाती थी। मैं अपने बेटे के लिए ये सारी हर्ब्स 3 साल हवन में प्रयोग की। उसको खिलाई नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन हवन में प्रयोग की। हवन का जो वो होती है उसमें मिला के औषधि या सामग्री में मिला के उसको हवन करवाए 3 साल लगातार। उससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, ये नसें जैसे कहते हैं ना ब्लॉक हो गई, तो नसें खुल जाती हैं अगर आप हवन में इन सब चीजों को डालते हैं तो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी कल्चर में नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। आगे चले या एनी डाउट, एनी क्वेश्चन तक के उस पे? वी हैव 40 मोर मिनट्स अभी हमारे पास हैं। इन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ सर, प्रणाम सर। सर मैं आशीष बोल रहा हूँ। तिवारी जी कैसे हैं? बस सर बढ़िया है सर। एक चीज ये पूछनी थी, जो सर आपने कोको कोला वाला बताया, तो सर मतलब हाँ, हम लोग को इस तरह का मतलब फिर मतलब कोई बढ़िया जो ड्रिंक हो जिसको लेने से मतलब सेहत में इफेक्ट ना आए, कोई इंडिया में है सर इस तरह का, मतलब कुछ आता है? इंडिया में आप अगर यूज करना चाहते हैं तो ड्रिंक यूज करना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कालमेघ टिंचर ले लीजिए किसी होम्योपैथिक वाले की दुकान से, ठीक है। उसको ओके सर। कालमेघ टिंचर लीजिए और उसकी 5-7 बूंद महीने में 3 दिन सुबह खाली पेट लीजिए। उससे क्या होगा, कालमेघ टिंचर लेने से आपका लिवर एक्टिव बना रहेगा। अगर आप महीने में 3 दिन भी ले लेंगे, सुबह 1 कप पानी में खाली पेट कालमेघ टिंचर 5-7 ड्रॉप, तो लिवर एक्टिव बना रहेगा, लिवर को प्योरीफाई कर देगा। जब लिवर होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे ड्रिंक्स और ये सब ताकत की चीज़ें लेना चाहते हैं और लिवर हमारा काम नहीं करता, उसका इफेक्ट नहीं आ पाता। इसके बाद जैसे अभी विंटर चल रही है, विंटर में आप कोई भी अच्छा च्यवनप्राश ले सकते हैं, स्वामला ले सकते हैं। स्वामला एक च्यवनप्राश आता है द्युतपापेश्वर का, वो ले सकते हैं। कुछ भी घर का प्रिपरेशन कुछ ले सकते हैं, और नहीं कुछ तो आप बाजार से आंवला ले आइए। आंवले को कसिए कद्दूकस, और हाथ से निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और उसको सुबह खाली पेट लीजिए। इतना बढ़िया काम करता है वो। और मतलब 10 रुपए की मेडिसिन मुश्किल से डेली की, वो आपके पूरे परिवार के लिए, बशर्ते कि आपकी बहुत कफ प्रवृत्ति ना हो। आयुर्वेद कहता है 3 तरह की प्रवृत्ति होती है, वात पित्त कफ। अगर कफ प्रवृत्ति होगी तो खांसी जुकाम होगा आंवला ज्यादा लेने से। नहीं तो 1-2 चम्मच लेंगे, बहुत बढ़िया। आंवले का जूस इस समय बेस्ट टॉनिक है इस समय। तो होता है कंपनियों में जो मास प्रोडक्शन होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा वो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग, कोई गिलोय का रस पी रहा है बाजार से लेके, कोई नी जामुन का रस पी रहा है, उसमें ये नहीं पता सोडियम बेंजोएट कितना पड़ा हुआ है। सोडियम बेंजोएट कार्सिनोजेनिक होता है। आपको पता है कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आईएफआर के डॉक्टर्स ने कहा है कि आने वाले समय में 5 में से 1 व्यक्ति कैंसर का पेशेंट हो जाएगा हिंदुस्तान में।
कि प्रिजर्वेटिव इतना ज्यादा यूज हो रहा है मेडिसिन में। जब सुबह हम जो भी मंजन करते हैं ना, जो ब्रश करते हैं जिसपे पेस्ट लगा होता है, यस सर। उसमें एक एलिमेंट होता है जो झाग बनाता है, उसको बोलते हैं सोडियम लारेल सल्फेट। वो कार्सिनोजेनिक होता है। वहीं से हम कार्सिनोजेनिक सुबह से ही चालू कर देते हैं यूज करना चीजों को। उससे बचना चाहिए। अच्छा, सारे जितने प्रोडक्ट हैं वो प्लास्टिक की शीशी में आ रहे हैं। आप गिलोय का जूस लीजिए, वो प्लास्टिक में। यस सर। आप करेले का जूस लीजिए, वो प्लास्टिक में। तो क्या होगा? कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, सब में माइक्रो प्लास्टिक आता चला जाएगा। जैसे ही जो ज़्यादा यूज़ करेगा इस तरह की चीज़ें, जैसे ही 40-50 क्रॉस करेगा, वो उसका कहीं ना कहीं वो कैंसर के वो आ जाएंगे सिम्टम्स निकल के। अच्छा सर, जैसे हम डाबर का च्यवनप्राश यूज कर रहे हैं तो उससे मतलब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, सही है कुछ? नहीं, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। डाबर का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सर अच्छा उसकी पैकिंग तो प्लास्टिक में ही है सर। है। एक तो पैकिंग सब चीज आजकल प्लास्टिक में है, ये बड़ा मुसीबत है सर। उसी पैकिंग प्लास्टिक में। तो मैंने आपको घर का सोल्यूशन बता दिया कि आंवले को कद्दूकस करिए, उसको हाथ से निचोड़ के और उसका रस उसमें मिला के पीजिए। जितना क्लोज टू जितना नेचुरल और चीज आप बिना ये सब आर्टिफिशियल चीजों के यूज करें हाँ उतना हाँ हाँ, उतना बढ़िया रहता है। आप अपने घर के आसपास नीम के पेड़ पे गिलोय चढ़ा दीजिए, राइट सर। और उसको आप 10 दिन में या 15 दिन में या वीक में 1-2 दिन उसको यूज करिए उबाल के। आपकी इम्यूनिटी फर्स्ट क्लास रहेगी नीम पे गिलोय चढ़ा के। नेचुरल जी, बाजार का लेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। यस सर। और सर वो जो आपने अभी वो टूथपेस्ट वाला बताया, तो अभी मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा यदि हम मतलब अगर सोडियम वाला ना यूज करें तो फिर सर कौन सा मतलब क्या मिलेगा, सब में मिलेगा सोडियम लॉरेल सल्फेट, कुछ भी ले लीजिए आप। सर, मतलब इससे बचने का कोई तरीका सर? इससे बचने के सबसे लिए बढ़िया सूखा मंजन ले लीजिए, सबसे बढ़िया डाबर उसी लाल नीम कलर का। का दातुन किया जाए सर। सूखा मंजन ले लीजिए, कभी कभी सूखा मंजन करते रहिए। भाई सबसे बढ़िया उसी नीम का दातुन किया जाए सर। हाँ, नीम का दातुन, करंज का दातुन, फूल का बबूल का नीम का। दातुन। नीम, करंज, बबूल, यस इसी का सर। दातुन करिए। ओके। मतलब हो सके तो ये किया जाए तो ये सबसे बेस्ट है। हाँ बिल्कुल। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। Showing you my books. I have written 24 books, as Professor Vishal has told you initially. तो अगर आपको PDF चाहिए तो PDF मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये किताबें सारी तो सर टेक्नोलॉजी से अलग हटके इतनी सारी इंपॉर्टेंट किताबें सर आपने लिख डाली है। हाँ 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 हाँ। मतलब बहुत बड़ी बात है ये जो सर आपकी किताब में अभी लिस्ट देखा कि मैं थोड़ा शुरू में लेट ज्वाइन किया था 5-10 मिनट। अच्छा तो अच्छा अभी अच्छा। सर ये देख रहा हूँ सर ये टेक्नोलॉजी से हटके ये सारी तो कमाल की किताबें आपने लिख डाली है सर। हाँ, ये सब विशाल जी का कमाल है। विशाल जी हमारे हाँ। पास रहे 5 साल, इन्होंने लिखवाई है सारी। अच्छा सर। हाँ ग्रेट हाँ सर, ग्रेट। थैंक यू सर। हाँ। विशाल जी ने मेरे साथ ही किया ना PhD। अच्छा सर आप, अच्छा आप विशाल के गुरुजी हैं? हाँ, हम विशाल के गुरु जी हैं। अच्छा विशाल के, अच्छा विशाल से इस तरह की चर्चा हुई नहीं। हाँ, विशाल जी अच्छा ने सर हम ये लोग सारी के भी किताबें गुरु लिखवाई जी हैं हैं। सर, सबको मतलब ज्ञान देते रहते हैं, टाइम टाइम पे हम लोग मिलते रहते हैं सर से। हाँ नहीं जरूरी है सर। और आज आपसे ज्ञान लेके हम लोग का काफी जो है नॉलेज अपडेशन और ये सब चीजें समझना जानना। एक तो टेक्नोलॉजी है अपनी जगह पे, वो सब आदमी पढ़ ही रहा है कर ही रहा है, लेकिन ये चीजें जानना और इसके नजदीक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है आजकल। एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग और हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स और मेंटल बैलेंस बना के रखना, मेंटल एबिलिटी अपने स्ट्रेंथन करना, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, राइट है सर, ना? राइट। नहीं तो कुछ लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सभी की लाइफ में क्रिएट होती हैं, और आदमी फिर बहुत जल्दी टूट जाता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है टेक्नोलॉजी के चक्कर में यही आर्ट ऑफ लिविंग ही छूट जा रहा है, वो छूट जा रहा है। अक्सर हो जा रहा है सर। जैसे एक पक्षी होता है, उसके दो
होते हैं, ठीक है। ही कैन फ्लाई, इट कैन फ्लाई हाई बाय 2 विंग्स। ऐसे ही हमारे भी 2 विंग्स होने चाहिए, कार टेक्नोलॉजी। राइट सर। हम ऊंचा नहीं उड़ सकते। चलिए मैं राइट विशाल सर। जी को कहूंगा कि आपको एक बुक तो मेरी जरूर शेयर करें, 100 गोल्डन। आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं आप लोग? अच्छा, मैं तो सर हिंदी भी मैं तो विशाल से लूंगा ही। विशाल नोट कर लेना। हाँ जी सर। 100 गोल्डन रूल्स ऑफ हेल्थ अजीत भेजना, वो 10-12 किताब भेज दो विशाल जी को। विशाल जी को पीडीएफ भेज रहे हैं हम, छोटी किताब होगी। ठीक है सर, ठीक है विशाल सर, जी थैंक आपको शेयर कर देंगे। जी सर। यस, नाउ वी स्टार्ट CNN। यस यस, Sir, पूछिए। namaskar. सुशील Sir, पवार जी, अच्छा आप भी है क्या? I'm also your student, sir. हाँ, यू आर फ्रॉम YMCA फरीदाबाद। हाँ, लेकिन सर मैंने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया है विशाल के साथ ना, कंप्यूटर अरे CSC आपने डिपार्टमेंट। YMCA फरीदाबाद छोड़ दिया? अच्छा अभी दिसंबर में ही छोड़ा है सर। अच्छा। हाँ, आपके ब्रदर कभी कभी मेरे पास आते हैं एक्चुअली। अच्छा जी, हाँ, अभी ज्वाइन किया मैंने सर ये 2 दिसंबर में। अच्छा अच्छा ये अच्छा, गुड। CSC डिपार्टमेंट। अच्छा, यहीं पे आ गए आप YMCA से? जी सर, ठीक ठीक ठीक, मुझे याद है आपका। अच्छा चलो ठीक है, इसलिए मैंने अच्छी बोला बात सर है आप सुशील मेरे भी गुरुजी रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, हाँ, ठीक है। एक तो विक्रम बाली तो डायरेक्टर हो गए IMS के, पता है आपको? IMS गाजियाबाद में डायरेक्टर हो गए विक्रम बाली, हाँ, विक्रम बाली जी, यस ना? हाँ जी सर। हाँ, मैंने कहा लोग बड़ी पोस्टों पे पहुंच रहे, अच्छी बात है, टीचिंग में भी। हाँ, ठीक है, ओके सर। चलिए। हाँ, CNNs are advanced versions of ANNs, having spectral layers to learn lower and high level features. 3 extra concepts, local filters, pooling, and weight sharing, make it powerful over ANNs. CNN successfully model the structural locality from feature space and reduces the vanishing gradient problem during training. In ANN, we have to face vanishing gradient problem. ANN को हम जब ट्रेन करते हैं तो बैक प्रोपोगेशन यूज करते हैं और उसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती है, तो CNN में नहीं होती है। Normally, the first step in pattern recognition is feature extraction, but in case of CNN, it has been observed that there is no need to extract the features by using other signal processing techniques. इसमें आप signal processing techniques को avoid कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको विशाल जी पढ़ाएंगे। This is known as end-to-end recognition. जब हम फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं करते, रॉ सिग्नल को प्रोवाइड कर देते हैं CNN को, तो दिस इज known as end-to-end recognition. This is very important technique nowadays. Professor Vishal will cover this area. की PhD भी इसी तरह की चीजों पर है। This is the architecture of the CNN. Here we use 4 layers. First layer is convolution layer. Second is pooling layer. Third is fully connected layer. And fourth is softmax layer. What is convolution? Convolution is a mathematical operation. It is a function derived from 2 given functions by integration, which express how the shape of one is modified by the other. The convolution formula is given like this. Right? This is the mathematical operation. And यहाँ पे क्या यूज होता है इसका इमेज प्रोसेसिंग में या स्पीच प्रोसेसिंग में? A convolution operation on a small region of input aimed at reducing the number of free parameters keeps useful information and eliminates insignificant information. This is the concept of feature extraction. Keeps useful information and eliminates insignificant information. This layer uses a matrix filter and performs convolution operation to detect pattern in the image. इसमें क्या करते हैं, हम एक फिल्टर पास करते हैं, ठीक है। Each convolution filter represents a pattern.
ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर हमें बर्ड को डिटेक्ट करना है तो फर का कोई पैटर्न लेंगे और उसको फिल्टर में पास करेंगे, उसको आई को, फर को, दिस। तो भी कैसे होता है, इस पे एक मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा, वो आप करेंगे। दिस इज द कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, राइट? On the top left, on the left side, we have input image matrix. This is the input image matrix, and this is the convolution sign, and this is the filter. We have to pass this filter from the top left. Top left में जब इस filter को लगाएंगे तो क्या आएगा, O11। थोड़ा सा एक स्लाइड करके आगे लगाएंगे तो क्या आएगा, O12। जैसे लास्ट में जब हम इसको फिल्टर को लगाएंगे, यहाँ लगा रखा है लास्ट में I55, I56, इस पे I57, इस पे जब हम लगाएंगे इस फिल्टर को, क्या आएगा, O55। It is given here O55 is equal to I55 into K11 plus I56 into K12 के ऊपर लगा दिया और उसको मल्टीप्लाई करके उसका टोटल सम निकाल दिया। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, आगे चलिए। हम आपको दे रहे हैं प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है। एक बार इसको हम वो कर देते हैं। फीचर डिटेक्शन इज ए विंडो जो दी हुई है, 9 cells. Place it over the input beginning from the top left corner within the borders and count the number of matching cells is then inserted in the top left cell of the feature map. Move the window one cell to the right and do the same thing. This movement is called stride of 1 pixel. Stride of 1 pixel. अगर एक एक आगे बढ़ा रहे हैं तो 1 pixel का stride हुआ. After you have gone through the whole first row, you can move it over to the next row and go through the same process. लो, ये प्रॉब्लम आ गई, इसका आंसर बताओ मुझे। इसमें आप हमें कुछ भी कैलकुलेट करके 2-4 एलिमेंट आप कैलकुलेट करके कॉपी पेन से लिख दीजिए। देना उनको, विशाल को भेज दियो किताब, छोटे वाली एक इंग्लिश की भेज देना। Sir, first row elements Yes. 0 1 0 1 0 Yes. 0 0. Good. Very good. So we can proceed. Any doubt? Any doubt to anyone? हो गया, आगे चलते हैं। Yes, sir. ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो गया।
Next is pooling. जैसे में दो चीजें हमने बताई थी आपको, एक फीचर एक्सट्रैक्शन और एक फीचर रिडक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन कोई टेक्निक यूज की लेकिन फीचर्स ज्यादा हैं, कम करने हैं, तो पूलिंग एक तरह से उसको मिनिमाइज करता है फीचर्स को। पूलिंग लेयर रेगुलरली फॉलोज द कन्वोल्यूशन लेयर। कन्वोल्यूशन लेयर के बाद पूलिंग लेयर आती है। इट कंबाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज इनटू ए कॉम्पैक्ट बनाता है, इनटू ए सिंगल वैल्यू, एज ए रिजल्ट रिडक्शन इन डायमेंशनलिटी ऑफ फीचर मैप। It transforms the joint feature representation into the valuable information by keeping useful information and eliminating irrelevant information. Pool size decides the size of the filter. Stride controls, stride मतलब आपने जो फिल्टर है वो एक कदम आगे चलाना है या दो कदम आगे चलाना है। Stride controls how the filter convolves around the input volume. Padding is used to make output volume integer, where O is the output height, W is the, ये padding के लिए यूज होता है। ये देखिए max pooling, most popular strategy used in CNN. It picks only the maximum unit and discards all other units from the pooling region. मैक्स पूलिंग का एक डिसएडवांटेज है ओवरफिटिंग। Can anybody tell what is overfitting, underfitting, सब क्या होता है? ओवरफिटिंग किसी को आइडिया है? ये सर जब डाटा को ज्यादा ट्रेन कर देते हैं ना तो टेस्ट वैल्यू पे उसका जो आउटपुट रहता है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से थोड़ा अलग आ जाता है। अंडर फिटिंग में होता है क्या कि का मतलब अंडर फिटिंग मतलब अंडर ट्रेन हुआ है मतलब डाटा, और ओवर फिटिंग मतलब होता है जब ज्यादा ओवर ट्रेन हो जाता है basically। ओवरट्रेन हो गया। It is basically on number of parameters. If we are taking too much parameters, then the problem of Yes. overfitting we face, and if we are taking very less parameters, we face the problem of underfitting. Good Means we are answer. not getting Good the proper curve. Yes, 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 yes. Yes. ठीक है। Other pooling is average pooling. Average pooling involves calculating the average for each patch of the feature map. This means that each 2 into 2 square of the feature map is downsampled to the average value in this square. ठीक है, इसमें एवरेज वैल्यू लेते हैं, उसमें मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। फिर इसमें एक और चीज होती है, दैट इज नोन एज रेलू फंक्शन। रेलू स्टैंड्स फॉर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट and is a type of activation function. Mathematically, it is defined as y is equal to max 0, x. ReLU is the most commonly used activation function in neural networks, especially in CNNs. It is easy to compute, suffer less from vanishing gradient. If learning rate is high, it may not be successful. ये सारे रिसर्च इश्यूज हैं। ये आ गया इसका कनेक्टेड लेयर, यहाँ पे आके ये लेयर्स कनेक्ट हो जाती हैं। सॉफ्टमैक्स लेयर, सॉफ्टमैक्स लेयर एलन की तरह ही होती है। मैं आपको बूलियन उसमें देना है 0 और 1, यस और नो, क्वालिटी के हिसाब से इसका डिसीजन हो जाता है। Softmax might produce the following likelihoods of an image belonging to a particular class. Softmax is implemented through a neural network layer just before the output layer. The softmax layer must have the same, ये last layer है output layer से just पहले,
The softmax layer must have the same number of nodes as the output layer. The last two layers fully connected at softmax are used for classification, while first two layers are used for feature map. देखिए, अगर किसी को इसमें रिसर्च करना है तो क्या तरीका है? आपको इसका आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, CNN का। इस तरह से चेंज कर सकते हैं आप इसका आर्किटेक्चर। आप सॉफ्टमैक्स लेयर को हटा करके इसकी जगह सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सॉफ्टमैक्स लेयर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? SVM से, सपोर्ट वेक्टर मशीन। किसी को आइडिया है SVM क्या होता है? What is SVM? SVM is a machine learning model which is used for the classification purpose. Yes, right. इसमें आपको मालूम है कर्नल्स यूज करते हैं? Yes, sir. कौन सा कर्नल यूज करते हैं ज्यादातर? I don't know. क्या है कि ये RDF, रिसर्च sir. इशू। Radial basis function. यस यस यस, 3-4 तरह के कर्नल्स हैं, वो काफी यूज होते हैं उसमें। सॉफ्टमैक्स लेयर को अगर आप रिप्लेस कर दें SVM से तो एक पेपर आपका छप जाएगा। सॉफ्टमैक्स लेयर को अगर आप रिप्लेस कर दें LSTM से तो आपका एक पेपर छप जाएगा। LSTM किसको मालूम है क्या होता है? Long short term memory. क्या चीज होती है? What is this? It is also one kind of neural network having some special characteristics in Okay. which we use the gated structures to forget the Yes. previous. यस यस यस, इसमें इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि गेटेड स्ट्रक्चर इसमें यूज करते हैं। We use gated structure. What are the drawbacks of simple ANN? Using the gated structure, we can forget the previously stored data. So Yes, 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 yes. Yes. That's why it is known as memory. Yes, it is two type, bidirectional, BLSTM or LSTM. If we replace softmax layer by light gated recurrent units, LIGRU, आपका एक पेपर और छप जाएगा। इस तरह से जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पे, को आर्किटेक्चर में कुछ हेरफेर करना पड़ता है। आपको पता चला कि in CNN we have two types of approaches. One approach is normal approach. In normal approach, we extract the features by some signal processing techniques and we fed these features to the CNN. इसमें हम क्या करेंगे? वही पहले वाला तरीका, फीचर्स निकालेंगे और फीचर्स को CNN को पास कर देंगे। Another approach is end-to-end recognition. End-to-end recognition में आप क्या करेंगे? क्लास सिग्नल को सीधा
CNN को पास कर देंगे। We are not using any signal processing technique in end-to-end recognition. ये 2 वेज हैं, इसमें से कौन सा वे बेटर है, ये सारा अभी रिसर्च इश्यू है। इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए we have to go for Python. Python में TensorFlow and Keras. These are the 2 libraries which we can implement deep learning techniques. इसके लिए आपको Python पे काम करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। I have a question. Yes. Yes, as you said that कि अगर हम सॉफ्टमैक्स लेयर को रिप्लेस कर दें बाकी SVM से या फिर कोई भी अदर LSTM से या DLSTM से, तो इज इट पॉसिबल कि हमारी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी पर फर्क पड़ेगा, मतलब बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम, इस बढ़ जाएगा। हाँ, रिसर्च में जितना भी रिसर्च इंडिया में हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, आपने देखा, कभी ध्यान दिया? आप PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं? सर अभी परसिंग PhD। परसुइंग PhD। योर Yes, sir. इंट्रोडक्शन, क्या नाम है आपका? So my name is Tanuja. I am pursuing Yes. PhD from Central University of Haryana. अच्छा, किस डिपार्टमेंट से? Computer Science and Engineering. कंप्यूटर साइंस से PhD कर रहे हैं आप? जी। अच्छा अच्छा। अगर आपने इंडियंस की रिसर्चेस देखी है तो वो क्या करते हैं, हाइब्रिड मॉडल यूज कर लेते हैं, Yes sir. Yes sir. है ना? किसी को पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन से ऑप्टिमाइज कर देंगे। Yes sir. और मेरे पास तो अभी 5-6 PhD इवेल्युएट आई, सबने क्या किया, 2-2 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज कर दी जबरदस्ती। Yes, तो किसी भी तरह से हाइब्रिड आर्किटेक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर यूज करके लोग PhD निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। तो एक बात ये भी तो है ना कि मतलब अब जब अगर हम CNN यूज कर रहे हैं, जैसे एंड टू एंड आपने बोला, तो उसमें हाँ सिग्नल प्रोसेसिंग वाला पार्ट हट जाएगा, हाँ, मतलब शुरू का, उससे थोड़ी सी उससे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। हो जाएगी, उससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, वो पार्ट हट जाएगा, तो इधर बैक एंड पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हाँ। यस सर। इट्स लाइक एक तो प्रोसेस्ड फूड है कि आपको खाना पहले कुक करना है और फिर खाना है, कच्ची सब्जियां और आटा रख दिया वो खाना है, एक विशाल जी, बनाने का टाइम तो बच जाएगा, बट यहाँ पर आपको डाइजेशन की और वो इश्यूज वो फेस करने पड़ेंगे। यस सर। यस सर। रो स्पीच प्रोसेसिंग, actually if you see the complexity in aspect of time, it increases. यस सर। Sir, we can थैंक यू proceed, सर। sir. हाँ, पढ़ना भी पड़ता है सारा चीज़ें ना, सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़नी पड़ेगी, स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन अगर यूज़ करने हैं तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। अब तो हो क्या रहा है कि सारी चीज़ें इतनी फैल गई हैं, पहले 4-5 तरह की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स थी, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, अब तो सैकड़ों ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आ गई हैं। लोग 2-2 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, 2-2 3-3, हर एक की लिमिटेशन दिखाते हैं, दूसरे की प्लस पॉइंट दिखाते हैं, दोनों को यूज़ करते हैं और उससे एक पेपर निकाल देते हैं, रिसर्च पेपर। इंडियन सिनेरियो में तो इसी तरह चल रहा है सब रिसर्च में। मेरे पास PhD इवेल्युएट तो होने आती रहती है, लगभग मंथ में एक PhD इवेल्युएट करते, तो सब ज़्यादातर इसी तरह से लगा रहे हैं अप्रोचेस। CNN में भी इसी तरह से हाइब्रिड आर्किटेक्चर अगर हम यूज़ करते हैं तो पर पब्लिश होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे रिसर्च आपका। इसके लिए आपको और भी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे
ट्रांसफर लर्निंग एक टर्म है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारी तरह की मॉडलिंग होती चली जा रही है, CNN में भी बहुत सारे इश्यूज इसमें क्रिएट हो रहे हैं। क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो फिर कंक्लूड करिए। Dear participants, please ask the questions. It was an interactive session we enjoyed, but you can ask your queries and questions. इंटरेक्टिव सेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कोई भी उसका आंसर दे सकता है, जरूरी Sir, नहीं I कि मैं ही have one आंसर दूं। question. Yes, In today's scenario, one is the yes, probabilistic models, statistical models, we can say, and second is the yes, machine learning models. yes. Which we should prefer in the research? एक्चुअली आपका प्रॉब्लम का डोमेन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, डेटा साइंस की बात करते हैं इस तरह से, तो डेटा की नेचर किस तरह की है, प्रॉब्लम की नेचर किस तरह की है, उस पे कौन सा मॉडल आप फिट कर सकते हैं। होलिस्टिक मॉडल फिट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का मॉडल फिट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या लगा सकते हैं उसमें, या फिर ANN की साइड जाना चाहते हैं, तो या तो हमारी किसी चीज़ पे एक्सपर्टाइज हो कि भाई हम जो है इस चीज़ के एक्सपर्ट है और हम यही लगा के अपना काम चला लेंगे, ठीक है। या फिर बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ यूज़ की हुई हैं, उन्हें हर एक मॉडल्स की लिमिटेशंस पता है, हर एक मॉडल्स की नेचर पता है, और उस नेचर के हिसाब से हम पिक कर लें मॉडल को कि भाई ये प्रॉब्लम की नेचर इस तरह की है और इस प्रॉब्लम की नेचर पे ये मॉडल सबसे ज़्यादा फिट होगा, एक्यूरेट होगा या बेस्ट रिजल्ट्स देगा। ये सारी चीज़ें सर आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट का विषय होगा ना। यस 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 डिफरेंट डेटा पे डिफरेंट, किसी पे कोई फिट बैठ जाएगा, किसी पे कोई फिट बैठेगा, कोई बेटर होगा, किसी पे कोई बेटर होगा, एक्सपेरिमेंट का विषय होगा। हाँ, इस तरह का कोई सिस्टम अभी इवॉल्व नहीं हुआ कि कोई ये बता सके, इतना इंटेलिजेंट सिस्टम कोई इवॉल्व हो जाए जो ये बता दे कि भाई इस तरह का डेटा अगर ये है तो इस पे ये मॉडल आपका फिर बैठ जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में कोई इस तरह का सिस्टम इवॉल्व हो जाए। क्यों विशाल जी, अभी कोई इस तरह का सिस्टम तो इवॉल्व नहीं हुआ या हुआ है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? Sir, it is basically you have to test the model hit and trial base. First, you have to test the model, then you can predict its accuracy or its effectiveness. So I asked the query so that our participants get if some kind of knowledge. According to me, it is basic fully on hit and trial. First, you have to हाँ, test, hit and try. हाँ, then you can conclude its effectiveness. एक्चुअली हिट एंड ट्रायल भी आप कह सकते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चलती रहती हैं चीजें, है ना। जैसे डॉक्टर पे आप जा रहे हैं तो डॉक्टर ने अगर पहले 100 पेशेंट देखे हैं ना, तो जो नया पेशेंट आएगा उसके बारे में उसको पता होगा कि भाई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको ये मेडिसिन बेटर रहेगी देनी, इस तरह के। ऐसे ही इस तरह के डेटा अगर आ रहा है तो उस पर ये चीज लगाना बेटर रहेगा। इस तरह का नेचर का डाटा का नेचर क्या है, बिल्कुल सर। नेचर ऑफ डेटा, यही सारा डेटा साइंस है कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए और डेटा पे कौन सा मॉडल जो बेस्ट फिट उस पे एक्यूरेट हो वो लगाया जाए। यही सारी डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस, इसी डेटा एनालिस्ट, यही सब हो रहा है। और आजकल ट्रेडिंग में इसका बड़ा यूज हो रहा है। शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, इसमें बहुत यूज हो रहा है इसका कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। इस पे बहुत कंपनियां इस पे ट्रेडिंग के बहुत पैसा दे रही हैं डेटा एनालिस्ट को। मेरे बेटे की भी, वो IIT रुड़की से बीटेक कर रहा है, उसकी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि ट्रेडिंग वाली जो कंपनियां हो रही हैं बहुत
एक एक करोड़ का पैकेज दे रही हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा एनालिस्ट चाहिए बंदा, जिसको इस सब पे अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा एक्सपोजर हो। जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं इनका अच्छा एक्सपोजर हो, मशीन लर्निंग की जितनी टेक्निक्स हैं उसका अच्छा एक्सपोजर हो, डीप लर्निंग की टेक्निक्स हैं उसका अच्छा एक्सपोजर हो, क्योंकि उन्हें तो रिजल्ट चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि भाई इस शेयर के रेट इस समय पे बढ़ जाएंगे एनालिसिस करके, मैथमेटिकल एनालिसिस या मॉडलिंग करके, और आपकी बात सही निकलती है, तो आप एक अच्छे एनालिस्ट हो गए उनके नज़र में। और अगर आप नहीं सही एनालाइज कर पाए, सही प्रेडिक्ट कर पाए चीज़ों को टाइमली, तो आप खराब हो गए। जैसे आपको पता होगा कि आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर कोरोना के बारे में लगातार प्रेडिक्शन करते रहे स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करके। मैं भूल रहा हूँ, कोई समथिंग अग्रवाल ही थे वो, प्रेमचंद अग्रवाल पीसीआर, क्या नाम था उनका, लगातार प्रेडिक्शन देते थे कि अब कोरोना घट सकता है, बढ़ सकता है, क्या हो सकता है। तो ये जितने भी मैथमेटिक मॉडल हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आ रहे हैं। ट्रेंड का भी ये है कि ट्रेंड भी बदलता रहता है। आज ट्रेंड आएगा एंड टू एंड रिकॉग्निशन का, कुछ समय बाद आएगा कि नहीं हम तो फीचर ही बेस्ड डालने हैं। तो इन सब चीज़ों पे रिसर्च चलती रहती है। ठीक है विशाल जी, है ना? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? Participants, please. Thank you, sir. Thank you very much for a very interactive session, interesting session. Thank you, sir. So I think it is a nice time to close this session and say thanks to our expert and represent our gratitude. So thank you, Dr. Agarwal, for your wonderful session. I appreciate your expertise in the area of probabilistic acoustic model. Today we learned introduction to automatic speech recognition. Sir started from the scrap and how the initial systems were designed, how they work, how their generation moved from starting to present, correlation, GMM, HMM, acoustic models, GMM based acoustic models, CNN based acoustic model, and in last, they briefed end-to-end models and their research aspects. Ki how can we generate new models in changing the present architectures. So really, it was a very wonderful sessions, and we all enjoyed this session. And I hope this session will be very useful for our participants also. So on the behalf of participants, I again thanks Dr. Agarwal. And tomorrow sessions will start at the same time 7 p.m. The experts will be Dr. Minu Dhiman and will deliver the talk on innovation and entrepreneurship from the micro, small and medium enterprise. So thank you participants. Thank you Dr. Agarwal. हाँ विशाल जी, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी स्लाइड अगर किसी को चाहिए तो शेयर कर दीजिए, तो कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है? So we will और share the एक बुक जो materials है with the वो, participants. हाँ 100 गोल्डन रूल्स फॉर हेल्थ, वो भी आप शेयर कर दीजिए। Sir, वो I have हिंदी में already भी है, shared. इंग्लिश में भी है, ठीक है? Yes, वो sir. भी लोग Yes, sir. पढ़ेंगे। We got the book, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. हाँ, नया साल आप सब लोगों के लिए अच्छा हो, और आज विवेकानंद जयंती है, आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी हो, और आप लोग सभी लोग, हम लोग उन भारत के अच्छे नागरिक बन के देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, संस्कृति के लिए काम करें। टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको भी प्रमोट करें, और जो वैल्यूज़ हैं उनको भी प्रमोट करें। इसी के साथ बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। Thank you, sir. हाँ, धन्यवाद सेशन के लिए और जीवन के थैंक यू लिए। सर। ठीक, ओके नितिन जी, बढ़िया, ठीक है जी, तो जी बंद करो। यस,